चेक करवा लो, इससे शुगर पता चलती है और बाकी मेडिकल कंडीशंस के बारे में हमें पता चलता है. बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू और टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू a tool that is going to be a comprehensive program, that is going to be a very convenient program, easy to access, and something that you can track every month. You can do this test every week. Yes. नॉर्मली हमारे दिमाग में यही होता है कि ब्लड टेस्ट करनी है तो 6 महीने में करनी है. बट टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन टूल विच यू कैन यूज एवरी वीक और एवरी मंथ. इस टूल से आपको क्या पता चलेगा? दिस टूल इज गोइंग टू हेल्प यू टू चेक योर एग्जैक्ट व्हाट इज द बॉडी फैट लेवल. ये इससे आपको आपका मसल मास पता चलने वाला है. इससे आपका विजरल फैट पता चलने वाला है, आपका बीएमआर पता चलने वाला है, और यस, आपके पूरे बॉडी की एक टोटल स्टोरी पता चलने वाली है. एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट BCA, that is body composition analysis. But here, before understanding about body composition analysis, we need to understand about the difference between man and the women body structure. Yes. See, we all know कि हमारा जो शरीर होता है ये नॉर्मली फैट से बनता है, मसल से बनता है, बोन से बनता है, राइट? बट डू यू नो अराउंड 60 to 70% हमारा जो बॉडी है ये वाटर से बनता है और रिमेनिंग इज फैट, bone, and the protein and the minerals. Women and the men both have different body structure because men have more muscle mass and women has less muscle mass. And that's the reason आपने देखा होगा कोई अगर men है और उसका अगर weight 80 kg है, at the same time if the woman is there and her weight is also 80 kg, she looks fat, but the that man look thinner, right? This is why, because that man has more muscle mass and the woman has more fat mass. So yes, we need to understand we both have built differently. Now, if we see about the percentage, you can see in the screen. First is about the muscle tissue. So in the man, if we can see the muscle tissue are 45%, but in women the muscle tissue for 36%. Essential fats are 3%, and in women these essential fats are 12%. If we could see the non-essential fats, these are the storage fats basically, and these are 12%, and in women these are 15%. Bone percentage is 15%. In the women, if you can see, the bone percentage are little lesser, and the other, which are the organs, the percentage are equal. So if we want to see and if we want to check about the weight, we have to consider the fat mass and the muscle mass. Now let's talk about the BCA, that is body composition analysis. So what is BCA? What is body composition analysis? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था that I am going to introduce one tool that is going to help in growing your business. but ये जो tool है इसे समझने के लिए BCA बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस जो है ये आपको सही तरह से समझना होगा. अगर आप इस टूल को समझ गए तो और इसके पैरामीटर्स को अगर सही तरह से समझ गए, कॉन्फिडेंटली इंटरप्रेट करना समझ गए, तो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता. So yes, understand about body composition analysis. Body composition analysis basically it's a method to use measuring measuring the total number of percentage of your fat, your muscle mass, and yes, and your your BMI, right? Now, why this is important? This is important to maintain your regular weight measurement. It is easy, it is convenient. यू कैन कैरी दिस एनीवेयर इफ यू वांट. आप कहीं पे भी इसे कैरी कर सकते हैं और इससे आपका जो आपके कस्टमर का जो वेट है वो आप इजीली बता सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द BCA, दैट इज बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस कौन सी चीजें दिखाता है, क्या क्या ये चीजें बताता है. तो जब आप बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करते हो, ये मशीन जो है एक बेसिक मैकेनिज्म यूज करती है, एंड द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज अ बायो इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस एनालिसिस, विच मीन्स BIA टेक्नोलॉजी.
I'm sure you must be thinking, I mean, how this machine is going to work. Is this kind of magic? No, this is not any kind of magic. This is a basic, this is a truly simply technology. And what this technology called? This technology is called as a bioelectrical impedance analysis, that is BIA technology. Now, what is this BIA technology? जब आप इस मशीन पे खड़े रह जाओगे, ये मशीन एक बहुत ही माइल्ड मैग्नेटिक जो वेव्स है वो आपकी बॉडी में डाल देती है. दीज आर वेरी माइल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस योर मसल एंड द बॉडी वाटर, these are basically electricity conductors, and whereas the fat, this basically resists the electrical flow, and जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपर फ्लो मिल जाता है कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, how much is the muscle mass, how much is the visceral fat, how much is the BMR, your body age and your weight. So this is going to be your a total body composition analysis report. और इससे आप अपने कस्टमर को एक बहुत बढ़िया तरीके से बता सकते हो कि इनका रिपोर्ट जो है, एक बेसिक रिपोर्ट जो है वो कैसा है. सो फर्स्ट let's start with knowing your body. So while knowing your body, we will start with the current body weight, because if we want to lose our weight, we have to understand first what is our current body weight. Second, our second goal has to be what is our आइडियल बॉडी वेट, क्योंकि जितना वेट कम करना है तो कहां तक पहुंचना है ये भी तो पता होना चाहिए. सो आइडियल बॉडी वेट पता होना भी उतना ही जरूरी है. थर्ड इज टारगेटेड बॉडी वेट. So we are going to learn today about targeted body weight as well. We are going to learn what is BMI. We are going to learn fat percentage, visceral fat, muscle mass, BMR and body age. So अगले आने वाले सेशंस में वन बाय वन हर एक पैरामीटर्स को हम बहुत डीपली जानेंगे. सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द वेट. ठीक है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही पूछा था कि आप में से कितने लोग रेगुलरली अपना वेट चेक करते हैं, एंड आप में से कई सारे लोगों ने मुझे आंसर भी किया था दैट यू चेक योर वेट रेगुलरली. बट हाउ टू कैलकुलेट योर आइडियल वेट? हाउ वुड आई गेट टू नो कि मेरा आइडियल वेट क्या है? रादर मेनी ऑफ यू यूजुअली आपने देखा होगा कि पीपल डू आस्क कि व्हाट इज माय आइडियल वेट. आप डॉक्टर को भी पूछते हैं कि मेरा आइडियल वेट कितना होना चाहिए. सो हियर इज द सिंपल कैलकुलेशन. Here's a simple calculation, that is, first is check your height in centimeter. आपको अपनी हाइट जो है सेंटीमीटर में कितनी है ये जानना बहुत जरूरी है. सो आपकी हाइट पहले चेक कर लीजिए. Now it could be your height, in the example we have already mentioned. So if you're male, your height, if we assume it is 175, what you have to do is you have to this 175 में से आपको 100 माइनस करने हैं. जो भी आंसर आता है दैट इज योर आइडियल बॉडी वेट. ओके, दिस इज फॉर द मेल. नाउ फॉर द फीमेल इन द ऑडियंस, जितनी भी ऑडियंस में फीमेल है वो अपने आइडियल बॉडी वेट को कैसे जांचे? आपकी जितनी भी हाइट है, let's assume if there is a female and her height is 164, then what she is supposed to do? 164 minus 105. The answer is 59. Now 59 is your ideal weight. Now there is a small assessment for you. आप सबके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, नॉट असेसमेंट, एक छोटी सी असाइनमेंट है आपके लिए. आप सबको, आप जब अभी ऑडियंस में हो, आपके पास ऑलरेडी अपना नोटबुक है, आपका पेन है, क्विकली आप अपनी हाइट और आपका जो वेट है उसे लिख लीजिए और जो भी आइडियल वेट है वो कैलकुलेट कीजिए, और जो भी आपका आइडियल वेट आ जाएगा उसे उसी नोटबुक में लिख के रख दीजिए. आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी योर टारगेटेड वेट. राइट, क्योंकि यू अंडरस्टूड व्हाट शुड बी योर आइडियल वेट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी आवर टारगेटेड वेट. नाउ द टारगेटेड वेट को समझने के लिए देयर इज अ कैलकुलेशन. So what we have to do is your current body weight. You need to know your current body weight. So मान लीजिए there is a person who is having his current body weight is 80 kg. हमने क्या किया है, करंट बॉडी वेट में से आइडियल बॉडी वेट को माइनस किया है, और जो भी आंसर आ रहा है दैट इज हिज टारगेटेड वेट दैट ही नीड टू रिड्यूस, ही नीड टू कट डाउन दिस वेट. सो क्विकली अगेन आपको अपने नोटबुक पे अपना करंट वेट जो है वो लिखना है,
उसमें से आपका जो आइडियल वेट आया था उसे माइनस करना है, एंड यस, जो भी आंसर आता है दैट इज गोइंग टू बी योर वेट लॉस टारगेट। आपको ये उतना वेट जो है आपको कम करना है। तो इफ योर करंट वेट एंड योर आइडियल वेट इज इक्वल, then you need to maintain your weight. If your current weight and is more than your ideal weight, then you need to lose your weight. And if your current weight is less than your ideal weight, then you need to gain your weight. I hope आपको ये समझ रहा है जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, because in order to understand about the weight management system, in order to understand about the body composition, we need to understand about body fat, body weight, ideal body weight, and the targeted weight. All right. Now let's move further and check our second matrix, which is BMI. Now let us understand what is BMI. BMI stands for Body Mass Index. It is a simple screening tool to estimate whether a person weight is appropriate for his height. इन सिंपल वर्ड्स, बीएमआई हमें एक ये बताता है कि हमारा बॉडी वेट हमारी हाइट के हिसाब से हेल्दी रेंज में है या नहीं है। ओके, तो मान लीजिए एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको बता रही हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि अगर आपको अपना बीएमआई कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे। आपका जो वेट है इन केजी डिवाइड बाय हाइट मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ कैलकुलेशन आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट है 70, आपकी हाइट को मीटर स्क्वायर में निकालना है और आपको कैलकुलेशन करना है। आई नो अगर आपका भी मैथ्स मेरी तरह बहुत खराब है तो डोंट वरी, मैं आपको इतना मैथमेटिक्स नहीं करवाऊंगी। आपको एक सिंपल टर्म्स में समझना है जो नीचे की लाइन मैंने आपको दी है, दैट इज इफ योर बीएमआई इज लेस देन 18.5 you are underweight. If your BMI is between 18.5 to 22.9, your BMI is in healthy or your health is in healthy way. Third is if your BMI is 23 to 24.9, you consider as a overweight person, which is a very big risk. If your BMI is 25 to 29.9, then you consider as a class 1 obese person. If your BMI is more than 30, then you are a class 2 obese person. आई नो ये बहुत थोड़ा डरावना है, आई एम श्योर यू मस्ट बी लिटिल स्कैरी, बट देन यू मस्ट बी ऑल्सो थिंकिंग कि ये बीएमआई हमें पता कैसे चलेगा। सिंपल आंसर है, जब आप बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस जब एनालिसिस करोगे यू विल गेट टू नो व्हाट इज योर बीएमआई। बट हियर इज द important thing, and the important thing is BMI does not give you a parameter of or the conclusion of being healthy. For example, एक कंसिडर कीजिए एक एथलीट है और उस का जो वेट है वो वेट है और मे बी 90 kg. नाउ दिस 90 kg वेट ऑफ दैट एथलीट इट कुड बी ड्यू टू मसल मास, एंड जिसके वजह से वो 90 kg का है। ऑफ कोर्स क्योंकि 90 kg है तो उसका बीएमआई भी कुड बी 20 मोर देन 29 और कुड बी मोर देन 30, राइट? So can we call that athlete person as a overweight person or class 2 obese person? No, we cannot consider him as a class 2 obese person. So the thing is, the conclusion is BMI is just the starting point and not the complete picture. So अगर आपको अपने हेल्थ को अच्छा रखना है सिर्फ बीएमआई को कंसिडर नहीं करना है, हमें एक पूरा का पूरा हेल्थ का पिक्चर देखना जरूरी है। सो हमने सबसे पहले आइडियल बॉडी वेट देखा, राइट? सेकेंडली हमने टारगेटेड बॉडी वेट को देखा। थर्ड हमने बीएमआई को देखा, बीएमआई कौन सा हेल्दी होना चाहिए। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कितने लोग, how many of you want to be in a healthy range that is in between 18.5 to 22.5? Can I see the hands? Can you raise your hands? Yes? Nobody? No one wants to become in a healthy range, be a healthy range? That's great. I'm sure you all wants to be in the healthy range, और आपकी जो healthy range है 18.5 to 22.9 है, उसी में आप रहना चाहोगे, obesity में बिल्कुल नहीं रहना चाहोगे, right?
लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्लाइड. सो बीएमआई तक तो समझ चुके हैं. अगली स्लाइड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉडी फैट. Now, if we talk about body fat, let's understand one thought. Whenever we think about fat, we often assume that all fats are the bad fat, right? हम हमेशा यही सोचते हैं कि सारे फैट बुरे होते हैं. But what if I tell you that not all fats are the bad fats? Because our body needs certain amount of fat to function properly. नाउ आप अगर देखोगे हमारे बॉडी में भी टू टाइप्स के फैट्स होते हैं. वन इज विजरल फैट एंड सेकेंड इज टोटल बॉडी फैट. विजरल फैट और टोटल Apologies, guys. I guess there is again a network connectivity issue. Give me some time so that I can check with Nikita and I'll get her online. Oh, I guess she's online. Hey, Nikita, you're back. Okay. Okay, am I audible? I'm Yes, so yes, you're sorry, there audible. was some technical issues. That's why I've got disconnected. Okay, can you see the screen? Yes, it is coming up, Nikita. Yes, now we can see. Yeah. You can continue. Okay. Thank you so much, Akshay. Thank you so much. So, as I said, let's talk about bad fat and a good fat. And since we are talking about visceral fat and a total body fat and total body fat का सबसे पहली बात होती है about the visceral fat because visceral fats are the considered as a more dangerous fat. Why? Because visceral fat वो होते हैं जो हमारे पेट के अंदर होते हैं, डीप abdominal एरिया में, हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स के ये आसपास होते हैं. ये फैट बाहर से हमेशा दिखाई नहीं देते एंड इसीलिए हेल्थ के लिए ये सबसे ज्यादा कंसर्न क्रिएट करने वाले फैट होते हैं. अगर विजरल फैट ज्यादा है तो ये आपके हेल्थ कंडीशन के लिए बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कौन से रिस्क इसमें आ सकते हैं. नंबर वन, type 2 diabetes. Number 2, high blood pressure. Number 3, heart disease. And number 4 is metabolic disorders. And इसीलिए विजरल फैट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. सो इफ यू वांट टू बिकम हेल्दी, you need to focus on your visceral fats first. Second is total body fat. Total body fats are simply means the overall amount of the fat in your body, which includes visceral body fat and the other fats which are basically which also known as the subcutaneous fats, which usually store at just under of your skin. So if we could see, the total body fat is basically the total of the visceral fat and the subcutaneous fat. All right. So if I ask you which fats you would like to control, which fats कौन से फैट पे आप सबसे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो रेज योर हैंड्स if you want to focus on your visceral fats. Yes, quickly, how many of you wants to control their visceral fats? Only 15 people wants to reduce or have a control on their visceral fats? Really? Okay, so I just hope you all of you have understood why visceral fats are more dangerous or why it is very serious. Now let's understand विजरल फैट एंड टोटल बॉडी फैट जो है ये कितना होना चाहिए. ओके, तो मैं आपको इसके लिए इसके पैरामीटर्स बताती हूँ. सो जब आप अपना बीसीए दैट इज बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस जब आप चेकअप करोगे, इसमें जो इसका विजरल फैट होगा आपका, ये विजरल फैट आपको कुछ इमेज में जैसे दिख रहा है वैसा दिखेगा. नाउ दिस इमेज विल इज बेसिकली इज शोइंग यू low to healthy, healthy to high, and high to obese. So if the smiley is comes under the green zone, which shows you are in the healthy zone, and if the smiley is comes under the red zone, that means you are in the risky zone. So I'm sure you all want to be in the healthy zone and not in the risky zone. But वो कैसे होगा maintain?
if you will be able to maintain your visceral fat between 1 to 9, 1 to 9 अगर मेंटेन हो रहा है आपका विजरल फैट, then only you will become healthy. But if your visceral fat are more than 9, definitely this is more challenge, this is going to be more challenging. Let's talk about body fat. If the body fat, now this in the same it is also in showing in the same parameter, that is it's the scale is something like low to healthy, healthy to high, and high to obese, right? Now for the body fat for the women, it has to be between 20% to 30%, and for the men the percentage has to be between 10 to 20%. Now, of course, the smiley has to be in a green zone, which is between 10 to 20%. So more the your smiley in the red zone, it is the dangerous. नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द मसल मास. तो हमने सबसे पहले अगेन थोड़ा सा मैं रिपीट करती हूँ. हमने सबसे पहले आइडियल वेट के बारे में देखा. वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट आवर आइडियल बॉडी वेट. वी लर्न how to calculate targeted body weight. We learned what is BMI, right? We learn what are the bad fats. We learn what are the, very bad fats, right? And now we are learning about muscle mass. Now, when we talk about muscle mass, we all know that muscles basically are the foundation of the healthy body. So, what exactly muscle mass does? Muscle mass यानी कि एक अगर आप देखोगे, it's basically a total amount of your muscles present your body, which plays a vital role in your strength, movement and overall health. कई बार लोग वेट लूज करने के चक्कर में मसल लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दैट्स द रीजन उन्हें वीकनेस आ जाता है. हियर द एजेंडा इज यू लूज योर वेट but don't lose your muscle mass, because muscles are very important in our body. What are the benefits of muscles? Muscles क्या क्या बेनिफिट देते हैं, क्या क्या रोल प्ले करते हैं? सबसे पहला, मसल्स जो है आपकी मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं. मसल्स आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. मसल्स हेल्प्स टू कट डाउन योर कैलोरीज एंड बर्न योर फैट, एंड ऑल्सो इट कीप्स योर बोन स्ट्रॉन्गर. So if you want to become or if you want to live a healthy lifestyle, definitely you have to focus on your muscles. Now let's talk about next slide. Next slide, we are going to talk about BMR. Okay, before talking about BMR, let's talk about how much of muscles we need to maintain our body. Now, as per the guidelines, ideally for a men, the ideal muscles range should be between 40 to 45%. And in women, the ideal muscle range should be 30 to 35%. अगर आपका ये percentage number अगर कम है तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड साइन. ज्यादा है तो डेफिनेटली इट इज अ गुड साइन, बट एटलीस्ट फॉर मेंस 40% से कम नहीं होना चाहिए, और फॉर वुमेन 30% से ये कम नहीं होना चाहिए. तो आई एम श्योर आप सब अपना मसल मास बहुत अच्छा तरीके से मेंटेन रखना चाहोगे. अब आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड पे जाते हैं. अगला स्लाइड इज अबाउट BMR, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट. ओके, बेसल मेटाबॉलिक रेट को समझने के लिए आपको पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना है, क्योंकि वेट मैनेजमेंट का जो पूरा, मैं कहूंगी जो खेल है ना, वेट मैनेजमेंट का जो पूरा साइंस है, ये सब BMR पे डिपेंड करता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज BMR इज. BMR stands for basal metabolic rate, which is basically a number of your calories that your body needs to perform basic life activities, such as maybe breathing. So it could be blood circulation, it could be your brain activity. In a simple words, BMR basically आपकी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी को बेसिक वर्कआउट करने के लिए. मान लीजिए आप अभी राइट नाउ यू आर जस्ट सिटिंग, राइट, आप बस मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, आराम से बैठे हो और सेशन सुन रहे हो, राइट. जब आप आराम से बैठे हो एट रेस्ट, आपकी बॉडी में कई सारे फंक्शंस हो रहे हैं. यू आर थिंकिंग, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर ब्रीदिंग, you might be your blood circulation is happening in your body, right. ये सारे फंक्शंस को रन करने के लिए जो कैलोरीज लगती है, इन कैलोरीज को BMR कहा जाता है.
All right. So what is BMR? I hope you understood कि exactly BMR क्या होता है. तो BMR एक नंबर ऑफ कैलोरीज है जो आपके बॉडी को बेसिक लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लगता है. नाउ द फन पार्ट, और मैं कहूंगी द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ BMR इज, जितना बॉडी में मसल मास ज्यादा होगा ना, उतना आपका BMR हाई होगा. ऑल राइट, आई रिपीट, मोर द मसल मास BMR इज हाई, and more the fat, BMR is low. Now what is the ideal BMR range? I'm sure you want to understand कि आपका BMR कितना होगा. तो मैं आपको as per the ICMR guidelines बताना चाहती हूँ. ICMR, that is Indian Council of Medical Research. Indian Council of Medical Research says that if a man is having BMR between 1600 to 1800, that is the ideal BMR number. तो अगर आप मेन हैं और आप अगर अपना BMR मेंटेन रखना चाहते हैं, तो यू नीड टू मेंटेन दिस बिटवीन 1600 to 1800. एंड इफ यू आर अ वुमन, इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी, you need to maintain your BMR between 1400 to 1600. Now, जब भी कभी आपका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करोगे और अगर आपको पता चला कि आपका BMR 1100 है या 1200 है, तो इज दैट गोइंग टू बी अ गुड BMR और अ बैड BMR? रेज योर हैंड्स इफ यू फील इट्स अ बैड BMR. यस, कितने लोग हैंड रेज करना चाहेंगे अगर आपको लगा, मान लीजिए आपका BMR, अगर आप फीमेल है, अगर आप महिला है और आपका BMR अगर 1100 से 1200 आ गया, ओके, तो डू यू कंसिडर इट एज अ बैड BMR? रेज योर हैंड्स. Yeah? Will you consider it as a bad BMR? And I'm sure you would like to increase that BMR, right? Let me tell you, there are some tips to boost your BMR. Number one, how to boost your BMR? First, concentrate on your muscle mass. More the muscle mass, higher the BMR. So what you have to do is do the strength training workout. Increase your muscle mass. It will boost your BMR. Second, stay active. फिजिकली एक्टिव जितना आप रहोगे, उतना ज्यादा आपका BMR बढ़ता जाएगा. अगर आप घर पे जाके आराम से सोफे पे बैठना चाहोगे, दिस इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर BMR. तो कीप योर सेल्फ एक्टिव ऑलवेज. थर्ड, ईट इनफ प्रोटीन. डाइट में जितना अच्छा प्रोटीन होगा, जितना ज्यादा प्रोटीन होगा, इट विल इंक्रीज योर BMR लेवल्स. फोर्थ, स्टे हाइड्रेटेड. ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. नाउ मेनी पीपल सजेस्ट दैट पानी बहुत पीना चाहिए, एंड कितना पानी पीना चाहिए उसके लिए देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क. सो यस, लेट्स set a target that every day we should drink at least 3 to 4 liters of water every day. देखिए, आई अंडरस्टैंड देयर माइट बी सम पीपल हु आर थिंकिंग 4 लीटर्स तो बहुत ज्यादा होगा, बट जब मैं 4 लीटर्स कहूंगी ना, तब जाके आप 2 लीटर पियोगे. दैट इज ऑल्सो ट्रू फैक्ट. सो यहाँ पे वी नीड टू सेट सम टारगेट्स कि पानी कितना पीना चाहिए. एटलीस्ट 3 लीटर तो पानी पियो, राइट? स्लीप वेल. नाउ एटलीस्ट आपकी जो नींद है वो सही करिए. 7 to 8 hours स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर स्लीप पैटर्न. मैनेज योर स्ट्रेस. स्ट्रेस को जितना ज्यादा हो सके उतना मैनेज करो, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बूस्ट योर BMR. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अगला पार्ट, दैट इज योर बॉडी एज. कितने लोग यहाँ पे फॉरएवर यंग दिखना चाहेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू लुक यंग? यस, कैन आई सी द हैंड्स? Just 7 people? Just 9 people? 12, 13, 14, 136 packs is there today, and only 17 people wants to look younger. Really? I'm sure you all wants to look young, right? Exactly. But imagine your current age it may be 45. And if this body composition analysis, ये जो body composition analysis का ये जो machine है, ये अगर आपका body age 78 दिखाई दे, तो क्या आपको खुशी होगी या आपको दुख होगा? Will you feel happy or will you feel sad? How many you feel sad? कितने लोगों को बुरा लगेगा? Raise your hands.
अगर आपका एक्चुअल एज 45 है और अगर आपका बॉडी एज आपको 78 दिखाई दे तो कितने लोगों को बुरा लगेगा? सबको लगेगा बुरा। ऑफ कोर्स मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। अगर मेरा बॉडी एज 80 दिखाई दिया तो मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉडी एज इज ऑल अबाउट. So body age, basically there are two types of body age. Okay, one is chronological age and second is biological age. Chronological age is basically the actual age जो आपके normally passport आधार कार्ड पे होता है, and the biological age is basically your cells age. Okay, so it is basically depend upon how the aging process and how it is affected you. So if your body age is higher, which means it is high because of your low BMR level, it is high because of your low muscle mass, and it is high sorry and it is body age is high because your body fat percentage is high. So अगर आपको अपना बॉडी एज मेंटेन रखना है, आपके एक्चुअल एज की तरह रखना है या फिर उसे यंगर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपका बीएमआर हमेशा हाई रखना पड़ेगा, मसल मास को हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा, एंड बॉडी फैट परसेंटेज को हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा. देन ओनली योर बॉडी एज विल लुक गुड एंड यू विल लुक यंगर. बट ये बॉडी एज क्यों बुरा बन जाता है, यानी ये सबसे ज्यादा बढ़ता क्यों है? बिकॉज देर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स योर बॉडी एज. फर्स्ट, एज आई सेड, बीएमआर. सेकेंड, मसल मास. थर्ड, योर ईटिंग हैबिट्स, your drinking patterns, if you are having alcohol regularly, if you are smoking, आप रेगुलर स्मोक करते हैं, इसके वजह से भी आपका बॉडी एज हाई दिख सकता है. if your sleeping quality is bad, some of you I'm sure don't have even enough sleep. I'm sure आप में से कई सारे लोग होंगे जो रात के 2 बजे सोते हैं. Can I see the hands quickly? How many of you sleep at 2 o'clock? Yes. And how many of you sleep at around 3 o'clock? That's a very bad number. बट आई वुड लाइक टू से दिस कि अगर आप में से जितने भी लोग हैंड रेस कर रहे हैं जो 2 बजे सोते हैं या 3 बजे सोते हैं, आई एम श्योर आपका बॉडी एज जो है ये कभी भी नॉर्मल नहीं दिखेगा अगर आप आपका स्लीप पैटर्न सही नहीं रख रहे हो. तो यस, to stay healthy you have to maintain your basic healthy lifestyle, your eating habits, your sleeping habits, your physical activity and everything. So अगर आप टोटल इस पूरे सेशन में अगर आप देखोगे, वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स. सो अगर एक क्विकली रिवीजन करें तो हमने सबसे पहले, मैं फिर से बताती हूँ, हमने आइडियल बॉडी वेट को देखा. वी हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट आवर आइडियल बॉडी वेट. वी हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट योर टारगेटेड बॉडी वेट. we have learned how to check BMI and what is the ideal range for BMI, right? We learned what are the bad fats and bad fats which are the visceral fat, correct? We learned what is BMR, and higher the BMR is the healthiest BMR. We learned what is the muscle mass and why muscle mass is important. We learned about body age, right? So जब हम बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है आपको दिखाई देगा. आपको क्या करना है? आपको ये जो पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है, बीसीए रिपोर्ट, आपको प्रॉपर प्रोग्रेस ट्रैकर पे ऐड करना है. आपका प्रोग्रेस ट्रैकर रिपोर्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपने करंट मेजरमेंट्स लिख पाए एंड एवरी वीक उसे ट्रैक पर कर पाए. बट डू यू रियली फील कि इससे ही आपका सिर्फ वेट लॉस अच्छी तरह से दिखेगा? द आंसर इज नो. कई बार वेट लॉस जो है वो वेइंग स्केल पे नहीं दिखता. आप में से कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, दैट इज व्हेन यू चेक योर वेट, there is no any visible changes in your weight, but there is a visible changes in your inch loss, and that's the reason we need to understand that the measurements are also matters. तो जब आप बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने हमारा जो मेजरमेंट्स जो है उसे भी सही तरह से करना जरूरी है. तो व्हाट मेजरमेंट्स आर इंपॉर्टेंट? योर चेस्ट मेजरमेंट्स. चेस्ट मेजरमेंट्स आपको चेक करना है. योर राइट आर्म, योर लेफ्ट आर्म, योर वेस्ट, हिप्स, राइट थाइज एंड लेफ्ट थाइज. इस सारे मेजरमेंट्स को जब आप सही तरह से प्रॉपरली चेक करोगे, यू विल सी
the visible inch loss as well in your body. So in order to run the TRME program, in order to run the weight management program, these are the visible trackers report, जिससे आप अपने पूरे प्रोडक्ट और जो आपकी वेट लॉस जर्नी, वेट मैनेजमेंट जर्नी है, इसे और अच्छी तरह से सक्सेसफुल बना सकते हो. आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग कि आप, निकिता जी, आप इतनी सारी चीजें बता तो रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें हमें पता कहाँ से चलेगी? व्हाट इज दिस बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस टूल? ये टूल हमें कहाँ पे मिलेगा? हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि ये टूल है क्या और ये इस टूल का नाम क्या है? यू कैन रेज योर हैंड्स. चलिए देखते हैं कितने लोग हैंड रेज करके अपनी एक्साइटमेंट दिखाना चाहते हैं. Everyone would like to understand what is this tool is about. Everyone would like to understand कि इस tool का नाम क्या है. Okay. Definitely, I would like to share the tool name and the image. So the tool name is PowerMax BCA 150 Body Composition Analysis Tool. दिखने में ये बहुत ही सिंपल वेइंग मशीन दिख रहा है, राइट? बट ये सिंपल वेइंग मशीन आपको आपका पूरा का पूरा बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस का जो मैट्रिक्स है, जो जिसके बारे में हमने अभी बात करी, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको दे देगा, जिससे it is going to be easy to check your progress. It is going to be easy to check your customers progress, and of course the prospecting. Yes, as I said at the starting of that session कि ये पूरा 1 month का जो schedule है, जो पूरा 1 month का जो हमारा module है, it is all about the prospecting. सो हाउ टू स्टार्ट विद द प्रोस्पेक्टिंग. प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस को रन करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको सबसे पहले खुद का बॉडी कंपोजिशन चेक करना बहुत जरूरी है. तो हियर वन टिप आपके लिए, एक असाइनमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, एंड दैट इज कि नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है, विच इज गोइंग टू बी ऑन फ्राइडे हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, तब तक आप अपना आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करेंगे, आपका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस कैलकुलेट करेंगे, नॉट जस्ट नेक्स्ट वीक बट यस, अगले आने वाले जितने भी हमारे सेशंस होंगे, हर हफ्ते में आप अपना बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस चेक करोगे, अपना रिपोर्ट अपने पास रखोगे. मी एंड मिस्टर अरिंदम, वी बोथ आर गोइंग टू डेफिनेटली डिस्कस ऑल योर रिपोर्ट्स इन आवर अपकमिंग सेशंस. सो एज ऑफ नाउ टुडे सेशन जो है, ये आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज कर रही हूँ. बट येस, एज आई सेड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क, आप Q&A जो हमारा चैट है इसमें आप ऐड कर सकते हो, एंड वी आर डेफिनेटली we would definitely answer all your questions. So anybody of you have any questions, you can write down in the Q&A.